over the wicket to Javed. Javed this time chipped that one just over the infield. Will it go in to clear the boundary? 1 bounce over the row for 4 runs. Effortlessly played there by Javed. All that we can see as the bottom man comes into play. Looks like one he was taken aerial route. It was definitely going to be a chance here of the fielder, but he's played that one straight as an arrow over the head of the bowler, and 1 bounce over the rough. Such a useful cricketing strokes in the power play overs when we can see the only 2 fielders outside the circle. This is a perfect placement there from Javed to get the boundary, and score jumped into 5 on the board. Now Ranjit changing a field here. Now mid off going towards the extra cover. That wide is long off coming towards straight long off region. After seeing Javed hit that one very straight. Tried to play the off drive, missed the line completely. The quicker delivery there here from Ranjit. Sometimes he surprised the batsman with the pace. And 6 for without loss of any wicket. Here is again Ranjit, right arm over the wicket. Balls and Imran lofted over. The fielder is there. Not there actually. The mid on, the long on, I think it's inside the ring. The mid wicket is there. And before the mid wicket, the fielder, and of course the short sweep. Again, a beautifully bowled, excellent delivery. 2 different deliveries in the negation there from Sandesh. The Javed completely beaten in the negation. Sandesh away from us. Alright, I'm over the wicket balls. Javed lofted over. That was a clean hit. That was absolutely a clean hit there coming from the blade of Javed. Almost we can see that a sweet timing coming from the blade of Javed. Effortlessly played. I already mentioned he was one of the very good striker of the ball. Nothing wrong with the line of the delivery. Almost we can see. अब उनकी पारी में रंजीत अरशद के लिए ये गेंद अच्छी गेंद स्विंग किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर इनटू द गैप 4 रनों के लिए अरशद played that one with the perfect timings and with a perfect gap. लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में लंबा अंतर है, उस अंतर को पहले ही भांप लिया था और इस गेंद को खूबसूरती के साथ स्विंग कर दिया थोड़े से शफल होते हुए। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक का यार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्ट्रेट अवे दबाव गेंदबाज के ऊपर। दिस इज एन स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। 5 रन उपहार तोहफे के रूप में, वाइड के रूप में यहां पर जुड़ते हुए और निस्संदेह ये रन्स एनएफसी उरुआ के लिए काफी भारी पड़ सकते हैं उनकी पारी में जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद इस बार चिप किया इनटू द गैप और गेंद डीप मिड विकेट। बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। गेंद को रोका गया अपने कुछ हद तक ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए फील्डर द्वारा और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत सिर्फ 2 रन बल्लेबाज को यहां पर प्राप्त हुए। बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन 2 रन सिर्फ बल्लेबाज को मिले इस गेंद पर। 47 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज इस वक्त तैयार रंजीत। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बीच वाइड 2 रन और मिलेंगे और कुल मिलाकर 7 रन अब तक वाइड के रूप में इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज रंजीत। और निस्संदेह इस ओवर में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 14 रन इस ओवर में अब तक बन चुके हैं और अंतिम गेंद अभी भी बाकी। ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर रोका गया बेहतरीन तरीके से। पारी की अंतिम गेंद पर 50 रन पूर्ण हो चुके हैं केएफसी कृष्णापुर के। 50 comes up in the last delivery of their innings and they finished with 50 for the loss of 5 wickets in their stipulated. Will go into play after this match. This time chip that one and straight to the hands of short mid wicket. Not quite enough power behind that one. Just a flick of the wrist comes into play, and because of that, that ball travels straight to the hands of short mid wicket. Tilak is back into pavilion and NFC Uruwa, they lost their first wicket for the first wicket of the score of 7. So NFC really struggled with their bowling department, I will tell you. Just like I mentioned, they are not having 2 good bowlers in the side. They missed out Prajwit and then
shown the urgency of crossing over for a single, but Prajwal is not really interested for any run there. Arshad again back to his body mark. So far he bowled a very tidy line. Round the wicket he bowls. Oh, that was a better delivery. That was a fantastic slow delivery there from Arshad. It's not that much easy, I will tell you. Whenever the pass 3 runs for over 34 to get from 18 balls और चौके और छक्कों की इस वक्त उन्हें सख्त दरकार पहली गेंद उछालना चाहा बेहतरीन गेंदबाजी और गेंद इस वक्त पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में इमरान गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं और केएफसी कृष्णापुर के पास ना सिर्फ बल्लेबाजी में गहराई है बल्कि उनके पास एक सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप भी है और उस गेंदबाजी के लाइनअप के जरिए इस वक्त वो एक बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर देते हुए उस सशक्त गेंदबाजी के लाइनअप के जरिए कहना पड़ेगा और निस्संदेह 17 गेंदें 34 रन और हर डॉट गेंद के बाद दबाव बढ़ता नजर आता हुआ इस वक्त एनएफसी उर्वा के बल्लेबाजों के ऊपर कुल मिलाकर 17 रन बन चुके हैं और एक विकेट के नुकसान पर 34 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल 17 रन स्कोर्ड इन 3.1 ओवर्स ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है मेरे ख्याल से गेंद स्टम्प्सों को टकराई थी आखिरी मौके पर स्टम्प्सों को छू कर निकली थी बिल ऑफ हुआ ऑफ और मिडल स्टंप के बीच का और इस बीच ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है अनुज की पारी समाप्त दूसरा विकेट गिर केएफसी कृष्णापुर के पारी में अंतिम ओवर रंजीत ने फेंका था और उसमें उन्होंने 15 रन प्रदान किए थे और उस नुकसान की भरपाई यहां पर उन्हें करनी है अपने बल्लेबाजी के जरिए तो पहली गेंद रन से नहीं बना और गेंदबाज इमरान एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद चिप किया इस बार लगोल पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ रंजीत की पारी यहां पर समाप्त उछाला जरूर था लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और एक बेहतर जजमेंट के साथ अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए इसके आज को लपका फिर है और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है कुल मिलाकर अब प्रज्वल के बल्ले से चौका नंबर 2 लग चुका है ऐसे ही चंद और करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत इस मैच में वापस आने के लिए है और अगली गेंद ये गेंद इस बार टॉप एज और विकेट कीपर के हाथों में प्रज्वल जो उम्मीद की किरण इस वक्त दिखाई दे रहे थे एनएफसी उर्वा के लिए उनका विकेट गिर चुका है और उनका विकेट गिरने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएफसी उर्वा की पारी की नैया इस वक्त बीच आज को इस गेंद पर स्ट्रोक से खेलने का मौका उन्होंने प्रदान नहीं किया और एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट यह गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद और फॉलो थ्रू में पहुंचे थ्रो उन्होंने निशाना दागा लेकिन निशाना चूका और इस बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज 26 to get from 9 balls अरशद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि विकेट कीपर के पैरों से गेंद टकराई और इस बीच एक रन का इजाफा निशाना लग चुका है ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं 22 का इशारा अंपायर का 24 to get from 8 balls 3 runs per ball they have to score for victory ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आ गया है एक बार फिर से गेंद विकेट कीपर के पैर से टकराई और इस बीच दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे 28 for 6 and now 7 balls left in their innings लक्ष्य और कठिन होता हुआ इस वक्त एनएफसी उर्वा के लिए अरशद इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद बॉल्ड आउट एक्स्ट्रा क्विकर मच स्ट्रेटर लाइन एंड ही गॉट द ब्रेक थ्रू So 5 overs completed and now it's 22 required in last over 22 रन चाहिए अंतिम ओवर में और सिर्फ 3 विकेटें इस वक्त सुरक्षित तो जहां तक सवाल है पहले 5 ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन is now coming up swept single 39 that's it so 11 runs victory for KFC Krishnapur and with that 11 runs victory against NFC Urva, they are through to the semi-final of this competition. Next match